کیا یہ ممکن ہے کہ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کی جانے والی سب سے بڑی سب سے خطرناک غلطی یہ ہو کہ انہیں صرف ڈاکٹر، انجینئر یا کسی روایتی پیشے کے خواب دکھائے جائیں؟ ظاہر تو یہ ایک انتہائی محفوظ اور آزمودہ راستہ لگتا ہے نا؟ ہاں بالکل، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن ذرائع اور جس کتاب کا تجزیہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے بچوں کو کاروبار کرنا سکھایا جائے۔ اور یہ کتاب ہماری اس پوری معاشرتی سوچ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ صحیح، مطلب کتاب کے صفحات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد محفوظ پیشوں کی اندھی تقلید ہے، یہ دراصل آنے والی نسلوں کو کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ایک ایسی ناکامی اور فرسٹریشن کی طرف دھکیل رہی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ بالکل، اور ان ذرائع کا سب سے چونکا دینے والا پہلو یہ ہے کہ بچوں کے کیریئر کا فیصلہ اب کوئی شعوری یا منطقی عمل نہیں رہا۔ ہاں، تو پھر یہ کیا بن چکا ہے؟ یہ محض ایک سماجی دباؤ اور خوف کا نتیجہ بن چکا ہے۔ ہم جن تصویری خاکوں اور اقتباسات کی تہوں میں جا رہے ہیں وہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح روایتی پیشوں کی یہ دوڑ ایک ایسا خول بن چکی ہے جس نے بچوں کی تخلیقی سوچ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ ارے واہ، مطلب ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ خول کیا ہے بلکہ ہم اس میکانزم کو سمجھیں گے کہ والدین کس طرح اپنے بچوں کی سوچ کو ایک نئے کینوس پر منتقل کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی عام سی صورتحال سے ہوتی ہے۔ ہاں چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ اگر آج بھی پرائمری اسکول کے بچوں سے پوچھا جائے کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو ان کا جواب عموماً رٹا رٹایا ہوتا ہے۔ یا تو وہ کسی بہت ہی روایتی پیشے کا نام لیتے ہیں یا پھر انتہائی معصومیت سے کندھے اچکا کر کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم، بابا یا ماما کو پتا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، یہ جملہ بظاہر بہت معصوم لگتا ہے لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور تشویشناک رویہ چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل، یہیں سے اس نظریے کی بنیاد پڑتی ہے جسے کتاب میں معلومات اور سوچ کا محدود دائرہ قرار دیا گیا۔ ہاں، ایک بچہ جب یہ کہتا ہے کہ اس کے والدین کو پتا ہوگا تو وہ دراصل اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور نفسیاتی تحقیق بھی تو یہی بتاتی ہے نا کہ جب بچوں پر 8 یا 10 سال کی عمر میں ہی کسی مخصوص پیشے کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے جو ان کی اپنی پسند نہیں ہوتا، ہاں تو ان میں آگے چل کر ذہنی دباؤ اور عملی زندگی میں برن آؤٹ کی شرح 25% زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کی جڑیں خود والدین کے خوف میں پیوست ہے۔ دیکھیں، والدین اپنی اولاد کو صرف وہی راستے دکھاتے ہیں جنہیں وہ خود محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک روزمرہ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کسی شخص نے ایک انتہائی مہنگی، جدید اور شاندار گاڑی خریدی ہو، اچھا، اور اس گاڑی میں دنیا کا بہترین GPS اور نیویگیشن سسٹم لگا ہو، لیکن وہ شخص اس پورے عالمی نقشے کو ڈیلیٹ کر دے اور اس سسٹم میں صرف 2 یا 3 منزلیں فیڈ کر دے۔ مطلب ایک ہسپتال اور ایک انجینئرنگ فرم۔ بالکل، اب وہ جدید ترین گاڑی جس میں پوری دنیا کا سفر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جدھر بھی جائے گی گھوم پھر کر انہی 2 راستوں پر آ کر رک جائے گی، کیونکہ اس کے سسٹم کو پروگرام ہی ایسے کیا گیا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ جی، اور اگر اس مثال کو کتاب کے فراہم کردہ حقائق سے جوڑا جائے تو مصنفین یہ دلیل دیتے ہیں کہ والدین صرف اس گاڑی کی منزلیں محدود نہیں کر رہے بلکہ وہ لاشعوری طور پر اس کا اسٹیئرنگ ویل بھی توڑ رہے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع میں شامل ایک اہم تصویری خاکہ واضح کرتا ہے کہ والدین کا اپنا مطالعہ اور ویژن کس قدر محدود ہے۔ تو مطلب مسئلہ یہ نہیں کہ بچے نہ سمجھیں، بالکل نہیں، اصل المیہ یہ ہے کہ والدین کی اپنی معلومات کی قید انہیں اس روایتی لوپ سے باہر نکلنے کا سوچنے ہی نہیں دیتی۔ وہ ایک نامعلوم راستے سے خوفزدہ ہیں اور اسی خوف کو وہ اگلی نسل میں منتقل کر رہے ہیں۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بند گلی سے باہر کیسے نکلا جائے؟ ہاں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ خود اپنی منزل کا تعین کرے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کتاب میں نے ایک بہت دلچسپ بصری خاکہ دیا گیا ہے، وہ لکڑی کے بورڈ والا؟ ہاں، جس پر 5 رنگ برنگے سٹکی نوٹس لگے ہوئے ہیں۔ پہلا نوٹ کہتا ہے مقصد طے کریں، دوسرا نوٹ ہے منصوبہ بنائیں، تیسرا کام شروع کریں، چوتھا اس پر ڈٹے رہیں، اور 5واں منزل حاصل کریں۔ یہ ایک پورا فریم ورک ہے۔ لیکن میں یہاں اس سوچ پر ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کیا ایک 7 یا 8 سال کا بچہ جس کی دنیا بھی کھلونوں اور ویڈیو گیمز تک محدود ہے، کیا اس کے ننھے ذہن میں اتنی بڑی منزل اور مقصد کا بیج بونا حقیقت پسندانہ ہے؟ مطلب کیا ہم ایک چھوٹے بچے پر ایک کارپوریٹ مینیجر کی طرح کا بوجھ نہیں ڈال رہے؟ یہ بظاہر ایک منطقی سوال لگتا ہے کہ شاید ہم بچوں پر وقت سے پہلے بوجھ ڈال رہے ہیں، لیکن کتاب کے نفسیاتی تجزیے کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل اور جان لیوا بوجھ مقصد کا ہونا نہیں بلکہ مقصد سے لا تعلقی کا ہونا ہے۔ اچھا، یعنی منزل کا پتہ ہی نہ ہونا۔ بالکل، جب ایک بچے کو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ مستقبل کی ہر مشکل کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ صحیح، ان سٹکی نوٹس کا مقصد بچے سے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کھڑی کروانا تو نہیں ہے؟ جی نہیں، اس پر عمل درآمد کا طریقہ بہت بنیادی اور روزمرہ کی نوعیت کا ہے۔ اس عمل کو کتاب میں مائکرو گول سیٹنگ کا نام دیا گیا ہے۔ مائکرو گول سیٹنگ، تو اس کا عملی اطلاق گھر کے ماحول میں کیسے ہوتا ہے؟ کیا والدین بچے کو بٹھا کر کوئی پریزنٹیشن دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کا اطلاق انتہائی عملی صورتحال میں ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک بچے کو ایک مہنگا کھلونا یا نئی سائیکل چاہیے۔ ہاں، عام طور پر تو والدین یا تو فوراً خرید کر دے دیتے ہیں یا سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس فریم ورک کے تحت والدین اس سائیکل کو پہلے سٹکی نوٹ یعنی مقصد کے طور پر سیٹ کرواتے ہیں۔ اچھا، تو اب بچہ سوچتا ہے کہ اس مقصد تک کیسے پہنچا جائے۔ جی، اور پھر دوسرا قدم منصوبہ بندی کا آتا ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کے جیب خرچ سے کچھ حصہ بچانے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا گھر کے کچھ اضافی کاموں کی ذمہ داری لے کر
रकम जमा करने का सोच सकता है। ये वो गेट टू वर्क वाला मरहला हो गया ना। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ एक मसला आता है। क्या? बच्चों की तवज्जो तो बहुत तेजी से भटक जाती है। आज उन्हें साइकिल चाहिए, कल वो किसी और चीज की जिद करने लगते हैं। हाँ, उनके अंदर इस्तेकामत लाना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐन इसी मकाम पर चौथे स्टिकी नोट यानी उस पर डटे रहें की अहमियत वाज़ेह होती है। अच्छा, मतलब जब बच्चे का दिल चाहता है कि वो अपनी जमा की हुई रकम किसी आर्जी शौक पर खर्च कर दे, तो वालिदैन का किरदार ये है कि वो उसे उसके असल हदफ की याद दिलाएं और उसे अपने जज्बात पर काबू पाना सिखाएं। ये दरअसल कुव्वत इरादी की मश्क है। बिल्कुल। और जब आखिरकार वो अपनी मेहनत और हिकमत अमली से उस साइकिल को हासिल करता है तो वो सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहा होता। तो फिर वो क्या कर रहा होता है? वो अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग तब्दील कर रहा होता है। उसे ये यकीन हो जाता है कि वो अपने हालात और अपने फैसलों का खुद इंचार्ज है। अरे वाह, ये मरहलावार तरीकाकार वाकई सोच के धारे को बदलने वाला है। जी बिल्कुल। और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम फैसलों का इंचार्ज बनने और मकसद के तायुन की बात करते हैं तो हम इस जायजे के सबसे क्लीदी हिस्से की तरफ आते हैं। वो हिस्सा जो मुआशरे के लिए किसी ब्लाइंड स्पॉट से कम नहीं। हाँ, मतलब हम बच्चों की जहनसाजी करते हैं कि वो बड़े होकर फलां डिग्री लें और किसी के लिए काम करें, लेकिन हम उन्हें एक कारोबारी शख्सियत बनने की तरगीब क्यों नहीं देते? एग्जैक्टली। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या वसी तनाजुर से जोड़कर देखें तो इस रुझान की जड़ें हमारे मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में हैं। बिल्कुल। रिवायती पेशों को एक ऐसी महफूज पनाहगाह समझा जाता है जहां महीने के आखिर में एक तयशुदा तनख्वाह मिलने की जमानत हो। लेकिन ज़राए हमें यकसर मुख्तलिफ माशी हकीकत दिखाते हैं। हाँ, किताब ये दलील देती है कि एक कारोबारी जहनियत का हामिल शख्स सिर्फ अपने लिए ही माशी इस्तेहकाम पैदा नहीं करता, बल्कि वो मुआशरे के माशी पहिए को चलाने और दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का सबब भी बनता है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग कारोबारी शख्सियत का मतलब कोई बहुत बड़ा CEO या फैक्ट्री मालिक होना समझते हैं। तो फिर एक कारोबारी शख्सियत के हकीकी और अमली खुदोखाल क्या है? खास तौर पर एक बच्चे के अंदर हम इस चीज की नशोनुमा कैसे कर सकते हैं? ना गुफ्तो-शनीद या बातचीत का हुनर और नाकामी के बाद दोबारा खड़ा होना। अच्छा, जरा इसकी कोई रोजमर्रा की मिसाल दें। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा अपने बहन भाइयों के साथ किसी खिलौने या टीवी देखने के वक्त पर झगड़ने के बजाय कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालता है जिसमें दोनों का फायदा हो, तो वो दरअसल गुफ्तशनीद की महारत इस्तेमाल कर रहा होता है। बिल्कुल। और जब वो अपने किसी टूटे हुए खिलौने को फेंकने के बजाय उसे किसी नई शक्ल में जोड़ने की कोशिश करता है तो वो मसाइल का हल तलाश कर रहा होता है। अरे वाह, यानी वालिदैन को उन रवैयों को पहचान कर उनकी हौसला अफजाई करने की जरूरत होती है। जी, क्योंकि यही वो महारतें हैं जो आगे चलकर एक कामयाब इंसान बनाती हैं। सही। और इस रवायती सोच और नाम निहाद महफूज पेशों पर इसरार की एक और बड़ी वजह वो मुसाबकत भी है, जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में तफसील से किया गया है। बिल्कुल। हम एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें हर कोई एक ही सिमत में भाग रहा है और सबको लग रहा है कि बका इसी में है। आदात शुमार इस मुसाबकत की संगीनी को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। हाँ, हर साल लाखों की तादाद में तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग के इम्तिहानात में शरीक होते हैं, जबकि दस्तयाब नशिस्तें महज चंद हजार होती हैं। ये एक ऐसी तल्ख मुआशी और समाजी हकीकत है जिसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल। वो लाखों तुलबा जो इन चंद हजार नशिस्तों पर पूरा नहीं उतरते, वो खुद को मुकम्मल तौर पर नाकाम तस्वुर करने लगते हैं। उनका इत्मीनान मजरूह हो जाता है, हालांकि उनके अंदर किसी और शोबे में या अपना कोई काम करने में कमाल दिखाने की भरपूर सलाहियत मौजूद होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा मतलब है ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस सूरत हाल को हम एक और जाविये से देख सकते हैं। फर्ज करें एक इंतहाई चौड़ी और तवील हाईवे है जिस पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। अच्छा। गाड़ियां बम्पर से बम्पर जुड़ी हुई हैं, चारों तरफ धुआं है, हॉर्न का शदीद शोर है और कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये जामशुदा सड़क दरअसल वो रिवायती पेशे हैं जिनकी तरफ पूरा मुआशरा दीवाना भर भाग रहा है। बिल्कुल। लेकिन हैरान की बात यह है कि इस सड़क के बिल्कुल मुतवाजी कई और शानदार, जदीद और वसी हाईवेज बिल्कुल खाली पड़ी हैं। अरे वाह। उन पर कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रुकावट नहीं और वो कहीं ज्यादा शानदार और मुनाफा बख्श मंजिलों तक ले जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी गाड़ियों को जबरदस्ती उसी ट्रैफिक जाम में धकेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बाकी पूरी दुनिया भी वहीं खड़ी है। एग्जैक्टली। ये बसरी मिसाल मौजूदा दौर के कैरियर के इंतखाब की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। इस ट्रैफिक जैम में खड़े रहने का नतीजा सिर्फ वक्त का ज़िया और ज़हनी अजियत है। तो वो खाली हाईवेज असल में है क्या? किताब इस बात पर जोर देती है कि जिन्हें हम खाली हाईवेज कह रहे हैं वो दरअसल नए दौर के उभरते हुए शोबे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की जिद्दत, डिजिटल तख्लीक़कार और सबसे बढ़कर ज़ाती कारोबार या एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन लोग उन खाली सड़कों पर जाने से क्यों डरते हैं? मसला ये है कि लोग वहाँ जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वहाँ उनके आगे कोई और गाड़ी नहीं जा रही होती जिसके पीछे वो चल सकें। हाँ, वो अपना रास्ता खुद बनाने से खौफज़दा हैं। बिल्कुल। उन्हें बने बनाए रास्तों पर चलने की आदत डाल दी गई है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस खौफ की नफ्सियात को कैसे तोड़ा जाए? इसके लिए किताब के आखिरी हिस्से में एक जामे लाहे अमल तजवीज़ किया गया है। अच्छा, वो क्या है? उसका नुक्ता आगाज खुद वालिदैन है। देखें, कोई भी शख्स किसी दूसरे को वो रास्ता नहीं दिखा सकता जिस पर वो खुद न चला हो या जिसका उसे इल्म ना हो। सही। सबसे पहला कदम ये है कि वालिदैन को असरे हाजिर के नए रुझानात का मुताला करना होगा। बिल्कुल। उन्हें ये जानना होगा कि आज की दुनिया किन खुतूत पर उस्तवार है। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी ने किस तरह काम करने के तरीकों को यकसर बदल कर रख दिया है। हाँ, वालिदैन को पहले अपने अंदर मौजूद इस खौफ को ख़त्म करना होगा कि कारोबार या नए शोबे गैर महफूज होते हैं। जी,
और ये अपडेटेड शुदा मालूमात बच्चों के जहनों तक किसी किताबी लेक्चर के बजाय दिलचस्प अंदाज में मुंतकिल करनी होंगी। ये बात बहुत दुरुस्त है कि पहले वालिदैन को अपना वो जीपीएस अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो उसमें मुस्तकबिल की नई मंजिलें फीड कर सकें। लेकिन ये कैसे हो? इसका सबसे ताकतवर तरीका कहानियां सुनाना और उनके जरिए जहन साजी करना है। कहानियां? मतलब किस तरह की कहानियां? किताब तजवीज करती है कि डाइनिंग टेबल पर या सफर के दौरान बच्चों को उन रिवायती पेशों से हटकर कामयाब कारोबारी शख्सियात की कहानियां सुनाई जाएं। अच्छा। उन्हें बताया जाए कि किस तरह एक आम से इंसान ने एक छोटे से मसले की निशानदेही की, हाँ। उसका हल सूझा और किस तरह अपनी मुसलसल मेहनत से वो एक बड़ा इदारा खड़ा करने में कामयाब हुआ। और इसके अलावा उन्हें महफूज माहौल में नाकाम होने का मौका भी दिया जाए। बिल्कुल। जब वो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट या काम शुरू करें और उसमें गलती करें तो उन्हें डांटने के बजाय ये सिखाया जाए कि इस गलती से क्या सीखा जा सकता है। जबरदस्त। इस तरह उनके अंदर से खतरा मोल लेने या रिस्क लेने का वो कुदरती खौफ खत्म हो जाएगा जो उन्हें सारी जिंदगी एक दायरे में कैद रखता है। और यही वो मकाम है जहाँ एक बच्चा अंधी तकलीद के अंधेरे से निकलकर शऊरी इंतखाब की रोशनी में कदम रखता है। तो अगर हम इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ निकालें और इन तमाम पहलुओं को समेटें तो बात कुछ यूं बनती है कि बच्चों के मुस्तकबिल की तैयारी का मतलब उन्हें महज अच्छे ग्रेड्स लाने की मशीन बनाना नहीं है जी, और ना ही किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तैयार करना है। बिल्कुल। इसका मतलब रिवायती पेशों की महदूद और फरसूदा सोच की जंजीरों को तोड़ना है। हमें बच्चों के जहनों में बचपन ही से एक मकसद के तयन को परवान चढ़ाना है। स्टिकी नोट्स के फ्रेमवर्क के जरिए उन्हें अमली मंसूबाबंदी और इस्तिकामत सिखानी है। और सबसे बढ़कर उन्हें कारोबारी दुनिया और नए उभरते हुए शोबों के उन लामहदूद इम्कानात से रोशनास कराना है जो मौजूदा दौर के ट्रैफिक जाम से कहीं ज्यादा बेहतर मौके पेश करते हैं। जब वालिदैन अपनी मालूमात और सोच के कैनवस को वसी करके बच्चों को नए दौर के तकाजों के मुताबिक तैयार करते हैं तो वो दरअसल उन्हें इस काबिल बना रहे होते हैं कि वो जिंदगी का अपना रास्ता खुद तराश सकें। वो बने बनाए रास्तों पर धक्के खाने के बजाय अपनी नई शाहराहें खुद तामीर करने के काबिल हो जाते हैं और यही हकीकी कामयाबी की बुनियाद है। ये अपनी शाहराह खुद तामीर करने का तस्वुर वाकई बहुत ताकतवर और सोचने पर मजबूर करने वाला है। बिल्कुल। आज की ये गुफ्तगू हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद कई ऐसे रवैयों पर नजर सानी करने की दावत देती है जिन्हें हमने बगैर सोचे समझे अपना लिया है। लेकिन इस निशास्त को खत्म करने से पहले एक ऐसे पहलू पर गौर करते हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ पैसे कमाने या कैरियर बनाने से नहीं है, अच्छा, बल्कि हमारी पूरी इंसानी जिंदगी की बका से है। हमने इस पूरे जायजे में ये देखा कि बच्चों को कारोबारी सोच सिखाना उन्हें किस तरह माशी तौर पर मुस्तहकम और अमली जिंदगी में कामयाब बनाता है। लेकिन जरा गहराई में जाकर सोचने की जरूरत है। जी बताएं। जब एक बच्चा ये सीख लेता है कि नाकामी किसी चीज का इख्तिताम नहीं बल्कि ये सीखने का एक अमल है, जब वो जान जाता है कि महदूद वसाइल के साथ मुश्किल तरीन मसाइल का हल कैसे निकाला जाता है, और जब उसे ये इदराक हो जाता है कि हालात की सख्ती के सामने हार मानने के बजाय डटे रहना ही असल कमाल है, तो क्या ये कारोबारी सोच सिर्फ उसकी माशी जिंदगी तक महदूद रहेगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का मकाम है कि अगर कल को वो बच्चा कोई कंपनी ना भी बनाए, कोई कारोबार ना भी करे, तो क्या ये बिजनेस माइंडसेट उसे जाती जिंदगी के चैलेंजेस, रिश्तों की नाकामियों या रोजमर्रा की ज़हनी उलझनों का ज्यादा बेहतर और बहादुरी से मुकाबला करने के काबिल नहीं बना देगा? शायद इस कारोबारी सोच की तरबियत देकर हम बच्चों को सिर्फ माशी दौड़ में भागना नहीं सिखा रहे, बल्कि हम उन्हें इंसान होने के नाते उस गैर यकीनी और मुश्किल जिंदगी का सामना करने और हर हाल में जीने का असल हथियार फराहम कर रहे हैं। इस पहलू पर जरूर गौर कीजिएगा।